دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے پرسرار خطے کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں کے زیادہ تر لوگ آج بھی بغیر بجلی، انٹرنیٹ اور وائی فائی کے یہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس خطے کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خطہ 17,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی بلند ترین ریلوے لائن پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس ملک میں ہزاروں سالہ پرانی روایات آج بھی زندہ ہے، جیسا کہ یہاں ایک ہی عورت 4 سگے بھائیوں سے شادی کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ مرنے والے مردوں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے پرندوں کے آگے پہاڑوں میں ڈال آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ 17,000 فیٹ کی بلندی پر سخت سردی، کم آکسیجن کے باوجود یہاں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ تبتی لوگوں کا رہن سہن، کھیتی باڑی، مال مویشی پالنے کے طریقے کار، ان کی مذہبی رسومات اور تبت کی نومیڈک ولیج لائف بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی ڈاکومنٹری ویڈیو انتہائی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، جس میں تبت کی مکمل تاریخ، موجودہ ملکی حالات، یہاں کی تہذیب و ثقافت، قدرتی حسن، دیہاتی زندگی، حیران کن حقائق اور ان تبتی لوگوں کی خوبصورت شادیاں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں۔ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تبت کہاں آباد ہے۔ تبت ایشیا کے قلب میں واقع کوئی ہمالیہ، کوئی کراکورم، ہندوان جیسے عظیم پہاڑی سلسلوں پر بس ایک ایسے خطے کا نام ہے جو سطح سمندر سے کچھ مقامات پر 22,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے اس خطے کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، جہاں انسانی بستیاں بادلوں کے اوپر بھی آباد ہیں۔ دوستو اس تبتی خطے کی وجہ سے ایشیا میں بہت سے دریا اور ندیاں بھی بہتی ہیں، جیسا کہ دریائے سندھ سے لے کر برہم پتر، ینگسی، میکانگ میں پانی کی رونقیں تبت میں بسی وسیع برفانی چوٹیوں اور گلیشیئرز کی وجہ سے ہے۔ دوستو تبت میں اگر موسم کی بات کریں تو تبت کا موسم انتہائی شدید ترین مشکل اور سرد ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -20 تک گر جاتا ہے۔ یہاں کڑاکے دار خون جما دینے والی ٹھنڈ بھی پڑتی ہے، تیز ہوائیں، برفانی طوفان اور کم آکسیجن بھی یہاں بسنے والے تبتی خانہ بدوش لوگوں کا حوصلہ کم نہیں کر سکتی۔ دوستو سن 1990 کے تبتی جیولوجی سروے کے مطابق تبت کا پہاڑی سلسلہ 6 کروڑ سال پرانا ہے، جہاں ہزاروں سالوں سے ہی انسانی بستیاں آباد ہیں۔ تبت کی اس قدیم سرزمین پر قدیم تہذیبیں، ثقافتیں اور سلطنتیں آباد تھی، جیسے کہ زنگ زونگ، لو آن، چنگ منگ، یرلونگ اور تبتی شاہی سلطنتیں یہاں ہزاروں سال پہلے بھی آباد تھیں، جن کے زیر سایہ نیپالی، بھوٹانی اور چین کے شمالی علاقے آتے تھے۔ مشرقی لداخ اور شمال مغربی پہاڑی سلسلوں میں چانگیا، کھامپا، آمدو، گوپا اور شیرا جیسے تاریخی خانہ بدوش لوگ، کوئی ہمالیہ، کوئی کراکرم اور تبتی پہاڑی وادیوں میں یہاں صدیوں سے ہی آباد ہیں۔ دوستو یہ قدیم پہاڑی تبتی خانہ بدوش لوگ یہاں ہزاروں سالوں سے ہی آباد ہیں، جہاں یہ لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے سہارے ہی زندہ ہیں۔ یہاں یہ لوگ سارا دن ان برفانی چوٹیوں پر اپنے مال مویشی، بھیڑ بکریاں اور یاک چرواتے نظر آتے ہیں۔ پہاڑی یا تبتی یاک کو تبت کی شان بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو شوق کے ساتھ پالتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے شدید سرد ترین موسم میں یہ جانور آسانی سے نقل و حمل اور نقل مکانی میں ان کے کام آتا ہے۔ تبتی لوگ ہزاروں کی تعداد میں یاک پالتے ہیں۔ اس کا دودھ، اون اور گوشت یہ لوگ مزے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کوئی ہمالیہ سے لے کر کوئی کراکرم، تانگو کے پہاڑی سلسلے، نیاچین تانگلا کے برفانی گلیشیئرز اور برفانی چوٹیاں، خوبصورت نیلے پانی کی بہتی جھیلیں، یہاں کی سرسبز پہاڑی وادیاں ایشین ریجن میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو ایک محتاط اندازے کے مطابق تبت کی کل آبادی 37 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جس میں یہاں اکثریت تبتی قبائل کی ہے۔ تبتی قبائل کے علاوہ یہاں ہان، چینی، ہوئی اور دیگر قومیں بھی یہاں آباد ہیں۔ تبت کے اگر ایریا کی بات کریں تو اس کا کل ایریا 25 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے میں سعودی عربیہ، میکسیکو، انڈونیشیا، ایران، مقدونیہ اور جنوبی افریقہ سے بھی بڑا ہے۔ تبت میں لگ بھگ 7,000 کے قریب گاؤں، دیہات اور پہاڑی وادیاں شامل ہیں، کیونکہ اس ملک کی 80% آبادی دیہی علاقوں میں آباد ہے۔ تبت کے اگر ہمسائے ممالک کی بات کریں تو اس کا بارڈر بھارت، نیپال، بھوٹان اور میانمار کے ساتھ لگتا ہے۔ دوستو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید تبت ایک آزاد ملک ہے، بلکہ یہ ایک آزاد خود مختار خطہ ہے جو عوامی جمہوریہ چین کے زیر سایہ ہے، جس کا دارالحکومت لہٰذا سٹی ہے۔ دوستو تبت کے مقامی لوگ سادہ، محنتی اور فطرت کے قریب ایک سادہ سکون بھری زندگی یہاں بسر کرتے ہیں۔ یہاں اکثریتی پہاڑی علاقوں میں یہاں نہ کوئی الیکٹریسٹی کا باقاعدہ انتظام ہے، نہ انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی وائی فائی۔ ملک کی 75% آبادی آج بھی سوشل میڈیا سے کوسوں دور زندگی بسر
बसर करते हैं। पहाड़ी खित्ते होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी कोई उम्दा निजाम मौजूद नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं क्योंकि तिब्बत का ज्यादातर पहाड़ी इलाका सख्त बर्फबारी की वजह से ढका रहता है, इसलिए यहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। दोस्तों, तिब्बत के इन दूर दराज दही पहाड़ी इलाकों से शहरों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बस चलती है, जहां ये देहाती तिब्बती लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, रोज़मर्रा का सामान, फल फूलजात और सब्जियां लेने शहरों का रुख करते हैं। तिब्बत के पहाड़ी रास्ते दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाजर पेश करते हैं, लेकिन यही रास्ते अपनी खतरनाक पेचीदगियों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। दोस्तों, तिब्बत में हर साल सैकड़ों अफराद ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवा देती हैं, जिसकी बुनियादी वजह इंतहाई बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले, गहरी खाइयाँ, तेज मोड़, बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ का जमना, लैंड स्लाइडिंग, बाज़ इलाकों में ऑक्सीजन की कमी जहां ड्राइवर हजरात जल्दी थक जाते हैं, खराब मौसम, धुंध और तेज हवाएं इन हादसात की बुनियादी वजह हैं। दोस्तों, अलबत्ता तिब्बत में दुनिया की चंद एक मशहूर शहराएं आज भी मौजूद हैं, जिनमें चाइना नेशनल हाईवे G318 जिसकी कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है। ये सड़क चीन के शहर शिंगाई से शुरू होकर तिब्बत के शहर ल्हासा तक आती है। इस सड़क को दुनिया की खूबसूरत तरीन और खतरनाक तरीन सड़क का दर्जा भी दिया जाता है। इसके अलावा छिंगाई नेशनल हाईवे जो तिब्बत को शुमाली चीन के इलाके से मिलाती है, इसके नज़ारे भी देखने के लायक हैं। दोस्तों, दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे सिस्टम भी तिब्बत में ही मौजूद है, जो कि 17,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, जो सन 2006 से लेकर अब तक फुल वर्किंग में है। ये रेलवे लाइन तंगोला स्टेशन के नाम से भी मशहूर है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 1956 किलोमीटर है, जो चीन के शहर शिंग को तिब्बत के दारुल-हुकूमत ल्हासा से मिलाती है। ये रेलवे लाइन दुनिया की मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 5000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जहां बर्फपोश चोटियां मौजूद हैं और ऑक्सीजन की भी शदीद कमी है। दोस्तों, तिब्बत की मुल्क की 75% आबादी यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों, कोई कराक्रम से लेकर कोई हिमालय तक फैली है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, नीली पानी की बहती झीलें, ग्लेशियर से ढकी बर्फपोश चोटियाँ, जिनके बीचों बीच इन तिब्बती लोगों के पत्थर लकड़ी से बनाए गए घर, जिनमें इन तिब्बती लोगों की सादा साफ सुथरी जिंदगी जो कि कुदरत के इंतहाई करीब है, दिल को सुकून देती है। दोस्तों, तिब्बत के इन दूर दराज दही इलाकों में यहाँ ज्यादातर लोग मिलजुल कर आपस में एक फैमिली सिस्टम के तहत ही रहते हैं, जिसमें माल मवेशियों की देखभाल, खेती बाड़ी जैसे काम जो लोग मिलजुल कर ही यहाँ करते हैं। सर्दियों की सख्त सर्दी में जानवरों के सहारे ही ये लोग यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं। सर्दी आने से पहले तमाम गांव के अफराद मिलजुल कर मवेशियों के लिए यहाँ चारे का इंतजाम भी करते हैं, क्योंकि तिब्बत के इन पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ जाती है तो हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर ही नजर आती है। ताशी जोंगोन जो माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप के करीब वाक़ है, यहाँ से माउंट एवरेस्ट का एक शानदार नजारा देखने के लायक है। इस गांव के मकामी बाशिंदे यहाँ ज्यादातर याक पालते हैं और कुछ खानदान सियाहों के लिए गेस्ट हाउस का काम भी करते हैं। दोस्तों, तिब्बत में बसने वाले ज्यादातर लोग ज़माने कदीम से ही बुद्ध मत मजहब के पैरोकार हैं, जहाँ ये लोग पहाड़ों, दरख्तों, हवाओं और जानवरों की इबादत भी करते हैं। यहाँ के लोग आज भी दकियानूसी रवायात पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, जैसे कि अस्काई ब्रेल। तिब्बत की बाज़ जगहों पर यह एक कदीम रस्म आज भी यहाँ राइज है, जिसमें मरने के बाद मुर्दों को दफनाने या जलाने की बजाय ये लोग अपने मुर्दों को पहाड़ों पर चील और गिद्धों के आगे डाल आते हैं। ये कहते हैं कि इससे उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको तिब्बत के चंद एक बड़े शहरों की भी सैर करवाते हैं, जिनमें ल्हासा सिटी सरे-फहरिस्त है। ल्हासा तिब्बत का दारुल-हुकूमत सिटी है, जो सतह समंदर से 11,975 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस शहर को दुनिया का बुलंद तरीन दारुल-हुकूमत सिटी होने का एजाज भी हासिल है। ल्हासा शहर की बुनियाद 7वीं सदी में तिब्बती बादशाह नोंगिस्टन गैम्पो ने रखी थी। इस दौर में यहाँ बुद्ध मत तहजीबों को काफी फरोग मिला था। 1951 में चीन ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल कायम किया और इसके बाद ल्हासा चीन के ज़ेरे इंतजाम तिब्बत का खुद मुख्तार इलाका और दारुल हुकूमत बना। दोस्तों, ल्हासा शहर की पहचान यहाँ का पोटाला शाही महल भी है। ये महल न सिर्फ तिब्बत की शान है, बल्कि इसकी पहचान तिब्बती सकाफती फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। दोस्तों, तिब्बत का ये शाही महल यहाँ 7वीं सदी में तिब्बती शाही बादशाह नोंगिस्टन गैम्पो ने यहाँ तामीर करवाया। बाद में मौजूदा पोटाला शाही महल की तामीरात 1645 में 5th दलाली लैंपा के दौर में शुरू हुई। इस महल के अंदर 1000 से ज्यादा वसी कमरे, बेशुमार इबादत गाहें, हजारों मजहबी मुजस्समे, कदीम नक्शो नगार, तारीखी नवादरात इस महल में मौजूद हैं।
सन 1954 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इस महल की अहमियत को जानते हुए आलमी सकाफती विरसों की लिस्ट में इस महल को शामिल किया था। दोस्तों, अब हम आपको तिब्बत की रवायती शादियाँ, यहाँ के रस्म और रिवाज भी दिखाते हैं जो सुनने में इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब हैं। तिब्बत में रवायती शादियाँ यहाँ आज भी ज्यादातर आपसी कबाइल में ही की जाती हैं, जो कि इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं। तिब्बत के कुछ पहाड़ी इलाकों में तारीखी तौर पर यहाँ सदियों पुरानी रवायात आज भी जिंदा हैं, जैसे कि यहाँ 2 या 4 सगे भाइयों से एक ही औरत की शादी की जाती है। इस शादी को तिब्बत में बरादराना कसीर शोहरी शादी कहा जाता है, जिसमें एक ही औरत एक ही खानदान के 2 या कभी कभार 4 सगे भाइयों की मुश्तरका बीवी बनती है। दोस्तों, इस रवायती शादी के पीछे भी एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है जो कि आज हम आपके सामने बयान करते हैं। दोस्तों, तिब्बत क्योंकि इंतहाई बुलंदी पर वाक़ एक मुश्किल तरीन खित्ता है जो वसी और अरीज पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जहाँ ज़री रकबा काबिल काश्त इंतहाई ज्यादा कम है। अगर हर एक भाई की अलग अलग बीवी से शादी कर दी जाए तो ये जमीन जहाँ बार बार तकसीम होती जाएगी। जमीन और जानवरों की तकसीम से बचने के लिए यहाँ के कबायली लोग ज्यादातर सभी भाइयों की एक औरत से ही शादी कर देते हैं, लेकिन अब ये रस्म कुछ कबाइल में ही पाई जाती है। दोस्तों, तिब्बत में इस तरह की शादियों से एक ही खानदान को अपनी जायदादें, माल मेशी और याक के रेवड़ों को एक साथ रखना आसान हो जाता है। इस तरह सारे खानदान के अफराद मिलजुल कर माल मेशी की परवरिश और खेती बाड़ी जैसे काम मिलजुल कर यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको तिब्बत के दूसरे अहम बड़े शहर शिगात्से की सैर करवाते हैं, जो सतह समंदर से 12,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ई है। लिहाजा के साउथ वेस्ट और ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे ये शहर आबाद है। शिगात्से शहर में लगभग 5 लाख के करीब तिब्बती लोग यहाँ सदियों से ही आबाद हैं। ये शहर अहम ज़री पैदावार, काश्तकारी के हवाले से भी अहम जाना जाता है, जैसा कि यहाँ चावलों की फसल की काश्तकारी साल में 2 से 3 मरतबा यहाँ की जाती है। इसके साथ यहाँ फल फ्रूट जात, सब्जियाँ, मकई, ज्वार, बाजरा जैसी अहम ज़री अजनास भी उगाई जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको तिब्बत के जिस खूबसूरत तरीन शहर की सैर करवाने जा रहे हैं, इस शहर को तिब्बत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। निगाची शहर तिब्बत के जनूब मशरकी पहाड़ी सिलसिलों पर कम बुलंदी पर कम आबादी वाला शहर है। यहाँ की कुदरती हसीन मनाजर, बहती पानी की आबशारें, सरसब्ज जंगलात, यहाँ की हसीन वादियाँ, इसके साथ यहाँ फल फ्रूट जात के बागात जिनमें अनारों, अंगूरों, खुबानी और आड़ू के दरख्तों की वादियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इस खित्ते में पाया जाने वाला फल फ्रूट जात, स्पेशली आड़ू, बहुत ज्यादा मकबूल है। ये सारा इलाका चीनी और गैर मुल्की सयाहों में बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ सरसब्ज जंगलात और सरसब्ज वादियाँ बहुत ज्यादा देखने के लायक हैं। दोस्तों, तिब्बत की सरजमीन को पहाड़ों की सरजमीन भी कहा जाता है, जहां दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, माउंट एवरेस्ट, कोई हिमालय जैसी पहाड़ी चोटियां मौजूद हैं। कोई हिमालय का पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत तक फैला हुआ है। सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत -30 तक गिर जाता है, जहाँ तमाम इलाके सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। इस सर्दी के दौरान भी यहाँ कुछ खाना बदोश कबाइल अपनी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। तिब्बत के शिमाली पहाड़ी इलाका कल्नोल के पहाड़ी सिलसिलों पर मुहित है, जिनकी लंबाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिनको दुनिया के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शुमार किया जाता है। पामीर के पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होकर मशरकी चीन तक कल्नोल के पहाड़ी सिलसिले यहाँ आबाद हैं। कोई कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले पूरी दुनिया में अपने बुलंद तरीन मकामात, मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों, गहरी खाइयों, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रस्तों और गहरी डलवानों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ बर्फानी तूफान, बर्फानी ग्लेशियर्स, बर्फ की जमी पानी की झीलें कसरत से आबाद हैं, और ये सारे इलाके इंतहाई ज्यादा देखने के लायक हैं। दोस्तों, इस तिब्बती खित्ते में ट्रांस हिमालय से लेकर कोई कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले, कंग टंग, कैलाश, हैंगवान, ननशान और गंदेसी जैसे पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ आबाद हैं, जिनमें बसने वाले यहाँ के खाना बदोश लोग जैसा कि खेम्पा, आमदो, योसंग, मुनपा, लोबा, शोरपा जैसे तिब्बती ओल्ड कबाइल भी यहाँ हजारों सालों से ही आबाद हैं। ये तमाम कबाइली लोग इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में अपना गुजर बसर करते हैं, अपने माल मेशी, भेड़ बकरियों और याक वगैरह के सहारे। इन लोगों के यहाँ खूबसूरत पत्थरों और लकड़ी से बनाए गए घर वो भी देखने के लायक होते हैं। उन तमाम कबाइली लोगों की यहाँ सादा जिंदगी कुदरत के इंतहाई करीब समझी जाती है।
दोस्तों, तिब्बत सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मकाम नहीं बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ इंसानों ने हजारों सालों से इंतहाई सख्त तरीन मौसम, कम ऑक्सीजन और दुश्वार गुजार पहाड़ी रस्तों के दरमियान भी अपनी सकाफत, पुरानी तिब्बती रवायात और अपनी शिनाख्त को यहाँ आज भी जिंदा रखा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री वीडियो के जरिए आपने तिब्बत को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक मुनफरद तहजीब, एक कदीम तारीख और हैरत अंगेज जिंदगी के तौर पर जाना है। हमें उम्मीद है ट्रैवल टू तिब्बत नोमैडिक विलेज लाइफ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सैर और सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।